So today I'm here to discuss about the topic of today's session, which is the origin and the parts of tabla. So there, first I will discuss about the Indian art. So Indian art, can you guess how much old this art tradition is? The classical Indian heritage is being more than 5,000 years old, and the tabla, which is one of the musical instrument from this musical heritage, it's been approx 400 years old. So first I will discuss about the origin of tabla, as my topic is origin of tabla and its parts. So I will discuss about the origin of tabla, how tabla get originated, how this shape came, how the word tabla came into this world. So maybe you all know that tabla, I just hope that all of you are musical enthusiasts and somewhere you read, heard the sound of tabla. So today we will discuss about the origin. There are many myths and rumors about the origin of tabla. Many people say that it's the invention by Amir Khusro ji. Amir Khusro is the student of Nizamuddin Aulia. You all remember. He is a very worshipped person in Muslim religion. Many of the people say that tabla is being invented by Ustad Amir Khusro ji. But he never mentioned the invention of this instrument in his books. He wrote one book named as Nazm-e Khusuriya. His book was this, and he never mentioned this instrument there. So it can't be, it's not evident that he invented this instrument. So one rumor is this, one myth is this, that this instrument is being invented by him, but that's not true. Second myth is that tabla is being invented by Ustad Siddhar Khan Sahab. He was the disciple and son of a great maestro, a great Pakhavaji from Punjab. So, and of course, he plays a very important role in the popularity of tabla, as all the gharanas are developed by his gharana, means Delhi Gharana. I will discuss later about all the gharanas in our further classes. But today, this is a second rumor, second myth, that how tabla is invented. First I told about that tabla is being invented by Amir Khusro. This myth is being, written in many of the books, which what I learned and what my guru given to me, what my guru shared with me, it's not true. Like this myth that tabla is invented by Ustad Amir Khusro. Second myth is like what I said, that it's being invented by Ustad Siddhar Khan Sahab. Siddhar Khan Sahab was a great artist from Delhi Gharana, and what I said earlier, that he is very popular and a great son of a great Pakhavaji maestro from Punjab Gharana. And the syllables, that the music, what we can say, the syllables of tabla, that the rhythm of tabla came from Delhi Gharana, like the bowls, the syllables. It's true, but he never like invented tabla, right? So this is, I told you about two myths, how tabla invented, right? But it's not true. Third myth, people say that Ustad Khabbe Hussain Dholakia, he's a great maestro, he's a great dholak player. Someone say that tabla is being invented by him, but that's also not true. So this is another myth. So three myths I told, that how tabla is invented. Fourth myth, which is also I read in few books, and there are what I said, that there are many myths regarding the invention of tabla. So fourth myth is, when the Arabic and Mesopotamian culture came to India, so tabla came from there, because I will discuss this later, that when I will discuss about the how tabla word came into this world, then I will discuss that how this instrument, this word tabla, came from Persian and Mesopotamian culture. Okay, so what is the true story behind the origin of tabla? Just please listen nicely. And this is the true origin, and it have proofs in the classical, the ancient heritage books, which was being written by, there is one book, epic Sanskrit literature, you just write the name of that literature, Natya Shastra. So Natya Shastra is that epic, you can say, Sanskrit literature, which was being written in 1st to 2nd century, and it was written by Bharat Muni. Bharat Muni was a very, a Brahman sage who wrote this beautiful literature.
So Natya Shastra is, you can say like in layman's term, Natya Shastra is a constitution of Indian classical heritage. Okay, so there is a proof that how tabla is invented there. So one day, what happened? It was one like how it's happening, rainy weather. So one day it was a rainy weather, and this Swati Muni went to a lake, a corner of the lake, and there was raining so much. The name of that lake is not mentioned, but that was a pond of blue lotus leaves, means Pushkar. So I was on like this Swati Muni went one day to a lake, and it was very raining, heavily raining, and that a pond where he went, it was a pond of blue lotus flowers, blue lotus leaves. So what happened that day, when the rain was dropping on that leaves, the leaf can be smaller also, can be bigger also, right? So when the raindrop was falling on that leaf, so it was making some beautiful sound. You can imagine that when the raindrop is falling on the floor, which sound it's making, right? So by imagining that sound, also in that case, Swati Muni, so Swati Muni imagined that sound when the raindrop is falling on that leaves. Okay, so what happened? By remembering that sound in his mind, he came back his cottage, and with the help of Lord Vishwamitra, you all remember who is Vishwamitra? Is a worship god in Hindu religion, and we say him like he is the craftsman and the deity of all the gods and the weapons which is being made by him. Okay, so every you can say every artist, every either carpenter, plumber, all the artists who are working in offices, in the shop, they are worshipping Vishwamitra, as there is one festival also, Vishwakarma Jayanti, you all remember. So with the help of Vishwakarma ji, and I will also say one thing, you know the Lanka of Ravan, it was being created with the help of Lord Vishwakarma. Okay, the Trishul of Shivji was crafted by Lord Vishwakarma. Okay, so with the help of Lord Vishwakarma, Swati Muni just told him the idea that I listened this sound on the lotus leaves, and by the help of this sound and with the help of Lord Vishwamitra and Swati Muni created an instrument known as Tripushkar. This is known as Tripushkar. What Swati Muni and Lord Vishwakarma prepared, it's somewhere, it's right now it's so much modern, but you can just imagine in the old times it will look similar like this. Okay, so what I said earlier, that Lord Vishwakarma and Swati Muni prepared this instrument. So you can see it have three parts. That's why it named as Tripushkar. Tripushkar is derived from two words. Tri means three, right? And Pushkar, you remember that I said you that he went to the pond which was full of Pushkar, means blue lotus leaves. Blue lotus. Pushkar is the Hindi name of blue lotus, right? Okay. So with the help of that, Swati Muni and Lord Vishwakarma prepared this instrument. It's known as Tripushkar, and this is the true story behind how tabla came. What is the origin of tabla? So first is, I will discuss the three parts of Tripushkar. One is Alingya, okay, one is Ankik, and one is Urdhavak. Three parts are there, and this is the true story. I am again saying behind the origin of tabla. Whatever you learned, whatever you read, it's evident in the Natya Shastra, what I told, the constitution or the Sanskrit literature, which we also saying the ancient, our gurus, like our lords saying that this, this is regarding, this Natya Shastra is regarded as fifth Ved. Okay, so this is the evidence proof that how tabla came. You can see the image of that Tripushkar and the tabla is little bit same. So one is Urdhavak. The first part is Urdhavak. I will explain little about Urdhavak. तो मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए त्रिपुष्कर के, ठीक है? तो पहला पार्ट है उर्ध्वक. उर्ध्वक को हम कहते हैं, देखो ध्यान से समझना इस चीजों को बेटा, कि तीन पार्ट जो है, एक आंकिक है. आंकिक मीन्स कि अंक और किक दोनों को पर्यायवाची समझना. अंक को हम आपने पढ़ा होगा, अंक को हम पर्यायवाची कहते हैं गोद, है ना, अंक की गोद में रखना. तो आप देख सकते हो जो आंकिक जो पार्ट है त्रिपुष्कर में, वो जो लेटा हुआ है नीचे ऐसे करके वो लेटा हुआ है. तो
जो भी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मृदंग हो गया, ढोल हो गया, ढोलक हो गया, और जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो लिटा के बजाए जाते हैं, है ना। तो मृदंग, पखावज, ढोलक, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। वो जो आंकिक है वो लिटा के बजाया जाता है, ठीक है ना, तो वो आंकिक है। तो आप कहोगे तो ये जो आंकिक से डेवलप हुआ पखावज, मृदंग, और मतलब ये कहने का तरीका है कि तबला और जो पखावज, मृदंग, ये सब एक ही तरीके से निकले हैं और त्रिपुष्कर वाद्य से निकले हैं, है ना। तो आंकिक जो हो गया वो लिटा के, कि अंक गोद में रख के बजाते, इसलिए उसका नाम आंकिक है। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। तो पहला पार्ट हुआ आंकिक। दूसरा ऊर्ध्वक। ऊर्ध्वक और आलिंग्य जो है वो तीन, जो दोनों पार्ट हैं वो आसमान की तरफ है। मतलब इनका जो इनका मुंह है, ये जो मुंह है ये आसमान की तरफ है, ठीक है। इसलिए इनका नाम है ऊर्ध्वक और आलिंग्य। तो आंकिक हुआ लिटा के। तो अगर कोई पूछेगा, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि जो पखावज, ढोलक और मृदंगम, मृदंगम को तो हमारे भारतीय संगीत संस्कृति में साजों का राजा कहा जाता है मृदंग को, क्योंकि बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। और पहले लोग कहते थे कि मृदंग जो है वो दो शब्दों से बना, मृदंग और प्लस अंग, जो मृदंगिक प्लस अंग। तो मृदंगिक मतलब क्ले, मतलब जो मिट्टी होती है, और अंग मतलब हिस्सा, तो मिट्टी का हिस्सा। ये भी लोग कहते थे कि तबला मृदंग से बना। तो आपको समझ में आया होगा कि त्रिपुष्कर कैसे रिलेट करता है इस वाद्य के निर्माण में। तो मैंने बताया ऊर्ध्वक और आलिंग्य, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो ऊर्ध्वक और आलिंग्य है वो आसमान की तरफ है, ठीक है, और आंकिक जो है वो लेटा हुआ है। उन दोनों के जो फेसेस हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। और तो ये जो दोनों हुआ, ये हुआ ऊर्ध्वक और आलिंग्य। अच्छा, अब मैं बताता हूं, ऊर्ध्वक जो है वो हमेशा राइट हैंड से बजता है और उसको कहा जाता है सम्यक, ठीक है। इसको आप लिख लो, याद रखना इसको, कि ऊर्ध्वक को कहते हैं सम्यक और वो राइट हैंड से बजता है। आलिंग्य जो है वो लेफ्ट हैंड से बजता है, उसका दूसरा नाम है हिंदी में व्यामक, ठीक है। तो सम्यक, व्यामक। कई कई बच्चे होते हैं, कुछ लेफ्टी होते हैं, कुछ राइटी होते हैं। जैसे कि पहचानने का तरीका क्या है कि जब आप कभी भी म्यूजिक सीखने जाओगे, तबला सीखने जाओगे, तो जिस हाथ से आप खाते हो, जिस हाथ से आप लिखते हो, तो उस हाथ से आप तबला, ये वाला राइट हैंडेड तबला लोगे। अगर आप एग्जाम्पल आप लेफ्टी हो तो आप ये जो तबला है, जो मेरा दायां है, जो राइट हैंडेड तबला, ये आप लेफ्ट से बजाओगे, सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, राइट। ओके, सो ऊर्ध्वक हुआ राइट हैंडेड तबला है, और जो आलिंग्य हुआ वो लेफ्ट हैंडेड तबला हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली द स्टोरी है ओरिजिन ऑफ तबला की। तो मैं चाहूंगा आप इसको याद रखें हमेशा जिंदगी भर, और आने वाले कुछ समय में आप जो इसकी सच्चाई है कि तबला कैसे बना, इसको आप लोग पढ़ेंगे। कहीं जो मैंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं, इसके बहुत मिथ्स हैं कि तबला कैसे आया और कहाँ से आया, बट ये जो स्टोरी है कि स्वाति मुनि एक नदी किनारे गए, वहाँ उन्होंने, बारिश हो रही थी और बहुत सारी पत्तियां थी और वहाँ पे बूंदे जो गिर रही थी पत्तियों पे, उसको ध्यान में रख के विश्वामित्र जी की मदद से तबले का, वो त्रिपुष्कर का निर्माण किया। त्रिपुष्कर आपको समझ में आ गया होगा। त्रिपुष्कर मीन्स तीन पुष्कर, तीन मीन्स थ्री पार्ट्स, आलिंग्य, ऊर्ध्वक और आंकिक। पुष्कर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो जो उन्होंने, स्वाति मुनि ने पुष्कर को ध्यान में रख के, पुष्कर के जो ऊपर जो ड्रॉपलेट्स पड़ रही थी उसको ध्यान में रख के इस वाद्य का निर्माण किया, ठीक है। तो ये हो गया त्रिपुष्कर। नेक्स्ट आई विल गो दैट हाउ दिस वर्ड तबला केम। ओके, मैंने अभी बताया कि तबला, ये जो वाद्य है, ये कैसे आया। तो तबला, कई लोगों का कहना है कि ये संस्कृत वर्ड है, इसका तबला जो है संस्कृत वर्ड है, बट कई लोगों का कहना है, जो मतलब 90% ऑफ द जो म्यूजिशियंस हैं और जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जो तबला जो है वो तबल वर्ड से आया। तबल, 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 तबल जो है पर्शियन वर्ड है। तो जब पर्शिया, अरेबिक और मेसोपोटामिया का जो कल्चर है वो जब भारत आया, तो साथ में बहुत सारा वहाँ का कल्चर, अरब का कल्चर, पर्शिया का कल्चर यहाँ पे आया और बहुत उसका प्रचार रहा। तो तभी उसी वक्त जो तबल वर्ड है वो आया। उर्दू, तबल जो है उर्दू शब्द है। तो तबल का अरेबिक में, उर्दू में जो मतलब होता है वो होता है सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं बताऊंगा इसको आने वाली क्लासेस में दैट कितने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। तो तबल मतलब जो सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो लोग तबल कहते हैं। तबल को उन्होंने यूज किया, जैसे कि तबल ए जंग,
तबले जंग मतलब जब कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट किसी वॉर में यूज होता था, है ना। आपने देखा होगा जैसे हमारे रिपब्लिक डे में वो परेड होती है ना, परेड में बहुत सारे आर्मी के ट्रूप्स रहते हैं, बैंड बजता है, जो बैंड होता है तो पीछे बहुत सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कि ड्रम्स हो गया, है ना, तो वो भी एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। तो तबले ए जंग, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब वो लोग आए तो तबले जंग उसको यूज करते थे। तबले जंग वो नाम था कि जब वो परकशन इंस्ट्रूमेंट को एक, जब हमारी जंग होती थी, कोई जंग होती थी, तब वो यूज करते थे, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया तबले जंग। वो बहुत फेमस वर्ड्स हैं, तबले जंग, तबले आलम। अब आलम क्या है? तबले आलम, जब ये जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये राजा के दरबार में जब बजाए, नाचे, गाए जाते थे, तब इनका यूज होता था। तो तबले आलम, तबले जंग, तो ये बहुत पुराने शब्द हैं जो उर्दू में यूज किए जाते थे। तो वहां से कहा जाता है तबला आया। तबल, तबला, वो धीरे धीरे तबल से तबलाहा होता गया, फिर तबला होता गया, तो आज के जमाने में तबला इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ऐसे तबले, जो तबला वर्ड है वो पर्शिया से आया, है ना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कि तबला का आज के टाइम पे किस तरीके से यूसेज किया जाता है। तबला बहुत ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है ना, कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेज को ग्रेस करने में बहुत काम आता है। आज आप देखोगे कि चाहे वो सोलो इंस्ट्रूमेंट हो तो तबला काम आएगा, अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट हो तो तबला काम आएगा। मतलब सारे कॉन्सर्ट्स में, सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में, चाहे वो, अब मैं बात करता हूँ 3 विधाओं की संगीत के। संगीत में कितने पार्ट्स है? 3, है ना। एक तो वोकल, एक इंस्ट्रूमेंट और डांस, इन तीनों को मिला के बना संगीत। ठीक, तो वोकल में आप देखते होंगे कॉन्सर्ट्स में, मतलब और वीडियोस वगैरह में देखते होंगे, वोकल म्यूजिक है तो तबला साथ में चाहिए। मतलब तबले के बिना तो जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो वोकल म्यूजिक में तबला चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक क्या हो गया? सितार, सरोद, सारंगी, उनके साथ तबला चाहिए साथ में संगत के लिए। और डांस हो गया कथक। कथक हमारा बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है। तो कथक, कथक के साथ आप देखते होंगे तबला बिल्कुल बजता है। तो तबला बहुत ना, एक हमारे क्लासिकल म्यूजिक में, इवन वेस्टर्न म्यूजिक में भी आजकल बहुत ज्यादा तबले का प्रचार प्रसार हो रहा है। ऑर्केस्ट्राज में, सिम्फनी बैंड्स हो गए, है ना। तो तबला बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। और जो तबले की इस पॉपुलैरिटी के पीछे आपको पता है किन लोगों का हाथ है? जो मतलब आखिरी सांसों तक अपने जो एंसेस्टर्स, अपने गुरुओं की जो परंपरा है उसको बांटते जा रहे हैं, उसको सिखाते जा रहे हैं। बहुत से लेजेंडरी मास्ट्रोज, गिफ्टेड आर्टिस्ट, अनसंग आर्टिस्ट, बहुत लोगों ने काम किया है, काम कर रहे हैं और काम करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि तबला में, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत एक इसका जो टोन और इसका जो रिदम और जो इसका एम्बियंस जो तबला बनाता है वो शायद ही कोई इंस्ट्रूमेंट बना सके, ऐसा मेरा मानना है। तो तबला बहुत ही मुश्किल और बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता। तबला हर कोई नहीं बजा सकता। अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द पार्ट्स ऑफ तबला। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ तबला के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा इसको। पार्ट्स ऑफ तबला में आप देख सकते हो 2 पार्ट्स हैं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। ओके, ये लेफ्ट हैंडेड तबला है, ये राइट हैंडेड तबला है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर मैं इसको राइट हैंड से बजा रहा हूं तो ये राइट हैंडेड हो गया, राइट। और अगर मैं लेफ्ट हैंड से बजा रहा हूं तो लेफ्ट हैंडेड हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो राइट हैंड से राइट हैंडेड तबला को बजाती है और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंडेड तबला से बजाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो लेफ्ट हैंडेड जो लोग होते हैं बहुत एक्सेप्शन होते हैं, रेयर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर कुछ लोग जो हैं, कुछ आर्टिस्ट, कुछ म्यूजिशियंस, अभी अगर ये लेफ्ट हैंड से बजाते हैं तो ये नहीं होगा कि ये लेफ्ट हैंडेड तबला हो जाएगा, इसका नाम वही रहेगा राइट हैंडेड तबला और इसका लेफ्ट हैंडेड तबला, बट वो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड तबला हो गया। हिंदी में कहते हैं इसको दायां, दायां क्योंकि दाहिने हाथ से बजता है इसलिए दायां। इसको कहते हैं बायां क्योंकि बाहिने हाथ से बजता है इसलिए इसका नाम है बायां। ठीक है, तो ये तो हो गया कि तबले के जो मूल है, मतलब जो हम देखने में 2 पार्ट्स हैं, दायां और बायां। ठीक है, तो ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं इसके जो पार्ट्स हैं, जो तबले के अंदर जो पार्ट्स हैं। ये है शाही, मैं एक एक करके सारे पार्ट्स बताऊंगा आपको। ये है शाही, ये ब्लैक होती है, आप देख सकते हो दोनों में। ये है शाही।
शाही का तबले की जो टोन है उसका उसमें बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शाही, है ना। क्यों? क्योंकि शाही अगर नहीं होगी ना तो तबला बहुत बन बन साउंड करेगा, मतलब तबला ऐसा साउंड करता है, ऐसा, शाही के बिना, है ना। और अगर शाही है तो, और शाही अगर इस पे है तो इसका जो बेस है ये बेसी साउंड आएगा। तो हम कहते हैं कि शाही का बहुत बड़ा रोल है तबले की टोन को इंक्रीज करने में, और अगर शाही नहीं होगी तो वो तबला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। और शाही जो ये ब्लैक पैच है बनता कैसे है मैं आपको बताता हूं। आयरन, आपने देखा होगा आयरन जब उसको घिसते हैं ना तो छोटे छोटे वो जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो निकलते हैं। तो आयरन का जो पार्टिकल्स है उसको फिर पाउडर की फॉर्म में बनाया जाता है। तो जो आयरन का पाउडर है उसमें थोड़ा चावल मिक्स कर दिया, आटा मिक्स करके इसको गोलाई में रखा जाता है और इसको धीरे धीरे मतलब परतों दर परत बढ़ाया जाता है ताकि इसकी टोन को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो शाही कैसे बनती है? आयरन का पाउडर, कुछ लोग उसमें चावल का यूज करते हैं, कुछ लोग आटे का यूज करते हैं, ठीक है। तो तब इसका जो ये जो ब्लैक पैच है, ये जो शाही की जो गोली है, ये जो क्या कहते हैं इसको, पिट्ठी, शाही की पिट्ठी कह सकते हैं, ये जो बनती है आयरन का पाउडर और चावल, ग्लू, आटा वो लोग यूज करते हैं, वो इसमें भी सेम, ठीक है। तो ये हो गया शाही, सबको समझ में आ गया ये शाही है, शाही, यस, ओके। अब हम आते हैं मैदान। ये जो बीच की जो लेयर है ये है मैदान। मैदान, इसको मैं एक आसान भाषा में याद करने के लिए, प्लेग्राउंड का हिंदी नाम है मैदान, ठीक है। बट आप किसी को ये मत बोलना कि इसे प्लेग्राउंड कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मैदान। मैदान और लॉ, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, मैदान और लॉ, ठीक है। जो तबले में हमारा जो प्योर टोन होता है तबले का वो लॉ से आता है। लॉ, जो तबले में ओपन साउंड है ना, ओपन साउंड जो है तबले का, द ओपन साउंड ऑफ तबला कम्स फ्रॉम लॉ। लॉ, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि लॉ और किनार में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ, क्या हो गया, लॉ और मैदान, ठीक, ठीक है। तो ये हुआ शाही, ये हुआ मैदान और लॉ, ओके। अभी आता है किनार। किनार, आप सभी इसको लिखिए, किनार, शाही, मैदान, किनार। ये जो थर्ड लेयर है इसे कहते हैं किनार। आप आसान भाषा में इसको याद कर सकते हैं क्योंकि किनारे पे है, ठीक है। तो ये किनार है, किनार, ठीक। किनार जो है इसका भी हमारे तबले में जो साउंड्स डिफरेंशिएट करने के लिए अहम योगदान है। लॉ और अब मैं आपको लॉ और किनार का साउंड समझाता हूं, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिएगा, लॉ और किनार का क्या साउंड है और फिर मुझे आप बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या है साउंड में, ठीक है। ये हुआ किनार और ये हुआ लॉ, फिर मैं आपको समझाऊंगा किनार का क्या यूसेज है, ओके। सो ये हुआ लॉ। You can understand the resonance of the तबला comes from law. Resonance, जो तबले में जो आस है वो है आ रही है लॉ से, लॉ, ओके। अब मैं आपको किनार की आवाज सुनाता हूं, किनार। जो किनार की जो साउंड है वो थोड़ी बहुत बंद है, थोड़ी बहुत बंद है। किनार और लॉ, लॉ की रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो तबले में प्योर टोन जो आता है वो लॉ से आता है। जो भी म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट हमेशा लॉ को ध्यान में रख के तबला को ट्यून करते हैं, है ना। ये हुआ लॉ, किनार, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरे मतलब चौथे पार्ट पे, गजरा। ये आपको दिख रहा होगा गजरा, ये गजरा है, ये गजरा है। गजरा हम लोग कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, गजरा हम कहते हैं जैसे, तो जैस्मिन फ्लावर्स को आपने देखा होगा, लेडीज लोग बालों में लगाते हैं गजरे को, है ना। तो उससे हम ध्यान रख सकते हैं गजरा है। गजरा कहा जाता है कि जो तबले की जो सुंदरता है, जो श्रृंगार है तबले का, वो गजरा है। तबले का श्रृंगार है गजरा, है ना। मतलब द ऑर्नामेंट ऑफ तबला इज गजरा, द ज्वेलरी ऑफ तबला इज गजरा। ये गजरा, इसको बनाया जाता है, आप देख सकते होंगे, ये जो मतलब क्रॉस शेप में, ये आप देख रहे होंगे, क्रॉस शेप में इसको गूथा जाता है। जो तबले की जो स्किन है इसको गुथा जाता है, मतलब जैसे हम स्यू करते हैं ना,
जैसे हम सिलाई करते हैं, सिलाई जब करते हैं तो उसी तरह हम जो ये जो स्किन्स हैं इनको हम सिलाई करते हैं, तो ये बनता है गजरा। ओके, ये गजरा बनता है। तो क्या हुआ, शाही, मैदान, लौ, किनार और गजरा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं पूड़ी, गजरे समेत। ये पूरा एक समेत पूड़ी होता है। ठीक है ना, आपको मैं दिखाता हूं कि मैं ये आज मुझे मिल गया, आप लोग देख सकते होंगे कि ये तबले की लकड़ी है, तबले की लकड़ी है ये। ओके, दिस इज द लकड़ी ऑफ तबला। इट्स नॉट वेरी ब्यूटिफुल but this is the lakdi of tabla, okay, which you can see the wood here the wood here is same as this। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो पूड़ी है ये इस पे ढकी जाती है, ये अंदर से पूरा हॉलो है ना, मतलब आप देख सकते हो कि अंदर से ये पूरा आर पार नहीं है, कि सिर्फ आधा यहां तक है, बस यहां तक इसको खोद रखा है। क्यों? उस रेजोनेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरी पूड़ी है ये इस पे ढकी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे, कई लोग पूछते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गजरा अलग है क्या, किनार अलग है क्या, मैदान अलग है क्या, शाही अलग है क्या? नहीं, तो पूरा पार्ट है पूड़ी, है ना, और पूड़ी इस पे ढकी जाती है। ओके, ये तो हो गया पूड़ी। और पूड़ी बनती किससे है? ये जो पूड़ी है ये तो मैंने आपको बता दी, शाही किससे बनती है? पूड़ी बनती है जो बकरा होता है उसकी खाल से। गोट की स्किन यूज होती है, गोट की स्किन। अब बच्चों बेटा डरना मत, गोट की स्किन, गोट को मारा नहीं जाता। मतलब जो लोग जो बकरियां हैं जो बूढ़े हो जाते हैं ना, जो मतलब ऊपर चले जाते हैं, तो उनकी स्किन जो होती है उनको पील ऑफ करके, उनकी स्किन को पील ऑफ करके उसको साफ करके फिर ये स्किन बनती है, दोनों में ये स्किन बनती है। तो बच्चे कभी कभी कहते अरे सर क्या हम जानवरों को मारते हैं इसके लिए, पर नहीं, जानवरों को मारते नहीं है। तो ये जो स्किन होती है गोट की स्किन, ये उससे बनती है, और स्पेशली उनको मारा नहीं जाता, है ना। जैसे मैंने बताया पहले कि जो कुर्बान होती हैं, जो एक्सपायर हो जाती हैं और जो बूढ़ी होती हैं, उनसे उसको साफ करके स्किन बनाई जाती है। तो ये जो दोनों पे, इस पे मतलब लकड़ी पे ये स्किन चढ़ाई जाती है। तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक तो इसकी लेयर मतलब मैदान की लेयर, उसके बाद किनार की लेयर, और एक लेयर जो मतलब यहां पे ढकी जाती है, सिर्फ आप देख सकते होंगे सिर्फ यहां पे ढकी जाती है, मतलब वुड के एंड्स पे, ताकि जो हमारी स्किन है वो फटे ना, जो गोट की स्किन है वो फटे ना। तो मतलब एक स्किन यहां पे, एक स्किन किनार की और एक स्किन मैदान की। कितनी स्किन हो गई? 3। ठीक, अब ये आ गया लकड़ी, लकड़ी आ गई। इसकी लगभग लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर्स ऊंचा होता है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो हमारा डग्गा हो, बायां हो। तो 25 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है, 25 26 अप्रॉक्स। ठीक है, और ये बीच में से थोड़ा खोखला होता है, बीच में से ये पूरा नहीं करा जाता, इसको पूरा नहीं करते, क्योंकि अगर ये पूरा हो गया तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में कई लोग ऐसे करके कुछ ढोल खोल इस तरीके से बजाते हैं। अगर हम लोग इसको पूरा खोद देंगे अंदर से पूरा, तो ये तबला नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसे खोल ढोल बन जाएगा, है ना। तो तबले की सुंदरता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझे लकड़ी। तो कितने पार्ट्स हो गए? शाही, मैदान, किनार, गजरा, लकड़ी। ठीक है, अब आते हैं बद्धी। ये होती है बद्धी। ये आप देख रहे होंगे जो स्ट्रैप है, ये जो रस्सी है, ये बद्धी है, चाहे वो बाएं में हो दाएं में हो, इसे कहते हैं बद्धी। ओके, बद्धी। ये भी गोट की स्किन से बनती है, बट ये बहुत हार्ड होती है। जो स्किन होती है गोट की, एक्चुअल स्किन ये लाइट होती है, मतलब थोड़ी सॉफ्ट होती है, बट ये बहुत हार्ड होती है। ये गोट की स्किन से ही बनती है बद्धी भी, है ना। और इसका क्या यूज होता है? देखो, जब मैं पूड़ी इस पे ढकूंगा, जब मैं पूड़ी लकड़ी पे ढकूंगा, तो मुझे कुछ चाहिए, रस्सी चाहिए ना, ताकि ये लगी रहे लकड़ी से, तो इसलिए बद्धी का यूज होता है। ठीक है, ताकि पूड़ी जो है वो हमारे लकड़ी के साथ अटैच रहे, वो जाए ना। वरना पूड़ी अगर मैं रखूंगा, अगर मैं बिना बद्धी लगाए इसको रख दूंगा तो वो निकल जाएगी, मैं बजाऊंगा कैसे, है ना। तो इसलिए इसका यूज है बद्धी का। तो ये हो गया बद्धी, ठीक, लकड़ी। अच्छा, अब मैं बता दो गट्टे, गट्टे में लाया, हाँ यस, ओके। ये आप देख रहे होंगे, ये देखो,
मैं लाया हूं साथ में, ये गट्टा, इसे कहते हैं गट्टे। आपको ये गट्टे है ना, राजस्थान में गट्टे की सब्जी होती है, वाह क्या बात। तो इसकी कम से कम लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर आसपास। तो इसका बहुत मतलब तबले की ट्यूनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा ना, तो जैसे कि क्या होता है, अगर मुझे तबला ट्यून करना है सी शार्प से डी शार्प, मतलब आप समझेंगे ये लोग कि तबले की ट्यूनिंग कैसे होती है। तो इसका ये बद्दी के अंदर रखा जाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, बद्दी के अंदर इसको रखा जाता है गट्टे को। तो क्या है, अगर मुझे तबला चढ़ाना हुआ, तबला चढ़ाना होगा, तो ऑफ कोर्स मुझे जो पूड़ी है वो टाइट करनी पड़ेगी। अगर मुझे तबले का जो नोट है वो ऊपर लेके जाना है, तो मुझे पूड़ी जो है टाइट करनी पड़ेगी। और टाइट कैसे होगी, जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा। तो आप समझ सकते हो, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा गट्टे को, तभी ये जो बद्दी है, ये जो रस्सी है टाइट होगी, राइट। टाइट होगी तभी तो उसका वो कसेगी और वो और ऊपर चढ़ेगी, राइट। तो गट्टे का आप समझ सकते होंगे कि ट्यूनिंग में क्या रोल है। अच्छा, अगर मुझे तबला ढीला करना है तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा, तो ये भी ढीला हो जाएगा, ये जो बद्दी है ये भी ढीली हो जाएगी, है ना। तो गट्टे को मैं ऊपर करूंगा तो तबला उतर जाएगा, गट्टे को मैं नीचे करूंगा तबला चढ़ेगा। तो ये हुआ गट्टे का रोल। गट्टा जो है वो भी लकड़ी से ही बनता है, लकड़ी से सिलेंड्रिकल शेप है इसकी गट्टा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार पार्ट्स हम दोबारा रिवाइज करेंगे। शाही, मैदान, किनार, गजरा, बद्धी, गट्टे और लकड़ी। कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए अभी तक, ठीक है। ठीक, अब ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। देखो सभी लोग, आप सभी ध्यान से देखना, तबले के नीचे ना थोड़ा सा बेस बना हुआ है, ये थोड़ा बेस बना हुआ है ना। अगर ये बेस नहीं होगा ना तो तबला जमीन पे टिकेगा नहीं। तो इस बेस के बिना, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस अगर नहीं हुआ तो तबला जमीन पे टिकेगा नहीं, हिलता रहेगा ऐसे करके, ये ऐसे करके हिलता रहेगा, ये जमीन पे टिकेगा ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसे टिकाऊं जमीन पे, तो वो नीचे जो बेस है वो बेस है, तभी ये जमीन पे टिक रहा है, वरना ये ऐसे हिलता रहेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं गुडरी, गुड़री, इसको लिखो आप सब, गुडरी, गुडरी, ठीक है ना। तो ये एक और पार्ट हो गया गुडरी। उसके बाद ये गद्दी होती है जिसपे हम अपने तबले को रखते हैं, गद्दी। आप सभी लोग देखिए, ये गद्दी है। अगर ये नहीं होगी तो हम तबला तो सीधा करके बजा नहीं सकते, थोड़ा अपने कंफर्टेबल के हिसाब से भी हमें हाथ के हिसाब से थोड़ा तबले को ऐसे करके या ऐसे करके सीधा रख के बजाना होता है। तो गद्दी का वो रोल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये गुडरी है, ये आप देख रहे होंगे छोटी सी ना एक मतलब बद्धी के उसमें गोल करके एक पेंदी बना रखी है, इसको कहते हैं इंद्री। क्या कहते हैं, इंद्री। इसको आप लोग ध्यान से सुनना समझना, इसको कहते हैं इंद्री। क्योंकि देखो अब इसका क्या रोल है, आपको इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्टिंग। जब मैंने ऊपर से बद्धी लेकर आया गजरे से, ठीक है, गजरे से बद्धी लेकर आया पूड़ी को टाइट करने के लिए, तो अब मुझे नीचे भी तो कोई सपोर्ट चाहिए ना, कि जिससे मैं इस पूड़ी को मतलब कवर कर सकूं, मतलब ऊपर नीचे दोनों से चाहिए। अगर मैं सिर्फ ऊपर से कर दूंगा तो नीचे कैसे करूंगा, है ना। तो इंद्री का ये रोल है, ऊपर से आती है फिर नीचे से जाती है, तो मतलब तबला ऐसे करके पूरा टाइट रहता है। ओके, तो अब तबले के पार्ट्स फटाफट करते हैं। शाही, मैदान, किनार, गजरा, बद्धी, गट्टे, लकड़ी, ये गुडरी, ये जो नीचे पेंदी है गुडरी, और उसके बाद ये इंद्री, इसको कहते हैं इंद्री। ये जो मैंने आपको बताया आप लोगों को, ये छोटा सा बना रखा है इन्होंने, मतलब एक बद्दी से बनता है, प्रॉपर सर्कल बनता है, इसको कहते हैं इंद्री। और ये फिर गद्दी, ठीक है, ये गद्दी, नीचे गद्दी। ओके, ये होगा इसके। ऐसी सेम इसके हैं, शाही, इसको कहते हैं मैदान, इसको कहते हैं किनार। कई बुक्स में आप पढ़ोगे इसको गोट भी कहते हैं, गोट, ग ओ की मात्रा ट, गोट। वो बकरी वाला गोट नहीं, गोट, मतलब इसका कहते हैं कई लोग किनार कहते हैं, कई लोग गोट कहते हैं। इसे कहते हैं गजरा। तबले की जो सुंदरता है, जो तबले का श्रृंगार है
गजरा, सेम बद्धी, बद्धी हो गई, ठीक है। और ये नीचे पेंदी, मतलब इसको जो मैंने बताया इंद्री, ये तो गुडरी है। ये जो बेस है जो मैंने आपको अभी लकड़ी में दिखाया, ये बेस है, और इस बेस के बिना तबला, तबला डग्गा हो चाहे दाया हो, वो टिकेगा नहीं नीचे, तो ये बेस है। और इस बेस पे चढ़ी हुई इंद्री, जिसकी वजह से पूड़ी और पूड़ी जो है इस पे टाइट है, ठीक। अब मैं बता दूं ये मेटल है, ये जो मेटल है ना, इसमें ये लकड़ी नहीं होती, ये मेटल होता है। कुछ लोग लकड़ी यूज करते थे पहले जमाने में, पहले जमाने तो ये मिट्टी का बनता था, तबला जो है मिट्टी का बनता था, पर क्या है रास्ते में ले गए तो टूट गया, तो फिर सारा प्रोग्राम खराब हो गया। अब क्या करें, तो मिट्टी से धीरे धीरे लकड़ी पे आया, लकड़ी से धीरे धीरे मेटल पे आया। अब मेटल क्या है, ये जो मेटल होता है ना, ये जो मेटल है, ये मेटल है पूरा, ये अंदर से पूरा खोखला नहीं है, ये पूरा एक बर्तन है। मतलब बर्तन, हम बर्तन देख जानते हैं ना, बर्तन, तो ये बर्तन है पूरा, ये नीचे से क्लोज्ड है बट पूरा हॉलो है अंदर से, तो ये बर्तन है। और बर्तन के ऊपर पूरी ढकी गई है, ये पूरी पूरी ढकी गई है। तो ये जो बर्तन है कॉपर का भी होता है, ब्रास का भी होता है, तो कह सकते हैं तांबा, मैं आपको आसानी में बताता हूं, तांबा, पीतल, स्टील, इन सब का बनता है, ठीक है ना। तो अब मैं डग्गे के पार्ट्स आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। शाही, मैदान या लौ, किनार या गोट, ठीक, गजरा, बद्धी, ये मेटल, इसको कहते हैं हिंदी में इसका नाम है कूड़ी। क में बड़ी उ की मात्रा, उसके बाद ड़, उसके बाद ई की मात्रा, कूड़ी, ओके, कूड़ी, ई, आ नहीं, ई, कूड़ी। फिर नीचे ये गुडरी, उसके बाद ये इंद्री, बस, ठीक है। तो ये हो गए तबले के पार्ट्स, गॉट इट। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे फिर कभी। थैंक यू, बाय, सी यू, नमस्ते।